Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. In today's section, we will be discussing some of the questions from our polity course. So, without any further ado, let's start our today's fruitful session. The first session is regarding the financial emergency written in Article 360. The proclamation of financial emergency must be approved by both the houses of the parliament. Indeed, within 1 month, no, 2 months. Actually, every emergency 352, 356, as well as 360 has been given the parliamentary approval time of 2 months. But the Hadsa happened in 1975, the emergency. So why? Sorry. So the 44th Amendment has rectified that Hadsa and given it the approval of only 1 month. So only national emergency has 1 month and rest is the same. So this is incorrect. The financial emergency, once approved by both the houses of the parliament, continues indefinitely till it is revoked, and it is the special feature of the फाइनेंशियल इमरजेंसी. इसमें 6 मंथ्स के बाद अप्रूवल लेते रहना पड़ता है. President can issue directions for the reduction of salaries and allowances of any class of persons and citizens, including, not except, including the judges of High Court and Supreme Court. भाई जब रुपए कम हो रहे हैं देश के पास तो सबकी सैलरी घटेगी ना. अंडरस्टूड. ओनली वन. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इंटरनल डिस्टर्बेंस फेस था, उसको हमने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया है. कब? उस हादसे के बाद, 1975 के हादसे के बाद, बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. और ये सारे एक्ट, ये जो पूरा एक्ट है, ये सही करता है मिस्टेक्स ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. 44th. एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन सेंटर, आर्टिकल 76. एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट at state level. Consider the following statements. The Constitution does not contain the procedure and grounds for the removal of Advocate General of the state. Yes, and the Constitution does not contain these things of the removal of Attorney General of India also. An Indian citizen who has held a judicial office for 10 years is eligible for the appointment of Advocate General. Indirectly true. Why? Because in our Constitution it is written that whosoever will be appointed by the governor as the Advocate General of the state has to conform to these two qualifications: citizen of India, as well as he is eligible to be appointed as the judge of the high court. और यही अटॉर्नी जनरल में क्या है? पहले तो प्रेसिडेंट इसको चुनते हैं, और दूसरी बात, ही इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और जज ऑफ द हाई कोर्ट की क्या है हमारे पास कंडीशंस? 10 ईयर्स या तो जुडिशियल सर्विस में है, या 10 ईयर्स प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. अंडरस्टूड. और सुप्रीम कोर्ट की क्या थी? आई थिंक 10 ईयर्स या तो एडवोकेट एंड 5 साल हाई कोर्ट जज. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेजिडेंट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. द रेन्यूमरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नर एंड इट इज़ नोन एज रिटेनर, ना कि सैलरी. सो द रिटेनर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिटेनर ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर. म्यूनसिपालिटी के बारे में क्वेश्चन है भाई. A municipality reconstituted after premature dissolution does not enjoy the full period of 5 years but remains in office only in the remainder period. Yes, panchayats, municipalities, the members of the Rajya Sabha, if they have been prematurely dissolved or expelled in the case of the Rajya Sabha member, then the new member or the new panchayat and municipality will only enjoy the remainder of the period. A municipality must be given a reasonable opportunity of being heard before its dissolution. Regarding Indian Parliament, a nominated member, okay, Schedule 10, Anti-Defection Law. नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में बोला गया है. इसको तो एक्सेप्शन है भाई, 6 महीने के अंदर अंदर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, हम आपको एक्सपेल नहीं करेंगे हाउस से. बट ये क्या लिखा है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months from the date on which he takes his seat in the office.
अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस बिकम्स डिस्क्वालीफाइड, हाँ जी डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट इन आई आर कोहेलो केस डिक्लेयर दैट द डिसीजन ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर कंसर्निंग द डिफेक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। नहीं भाई, बहुत ही फेमस केस था कि होलोहान वर्सेस जैक चिल हु केस ऑफ 1992। सो ऑप्शन 1 करेक्ट पूछा है। देखते रहा करो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अगर मैं मार्क कर भी दूँ तो। 7 स्केड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी है? एजुकेशन, वेट्स, फॉरेस्ट, मैरिज सेक्शन सब है। अच्छा एक और क्वेश्चन इससे बनता है, 42nd अमेंडमेंट, 5 सब्जेक्ट्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट, कौन कौन से हैं? तो ये कुछ ऐसे याद किया था मैंने, एजुकेशन की वेट कितना है, एक और चीज़ थी, ये जाके फॉरेस्ट में एनिमल से पूछो। तो ऐसे मैंने कुछ याद किया, एजुकेशन का वेट कितना है, एक डैश में एक और चीज़ थी, ये फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल से पूछो। तो ये सारी चीज़ हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट लिस्ट से हमने कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अंडरस्टूड? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, याद आ गया। एक्चुअली मैंने कुछ नोट्स लेके नहीं बैठता, जितना भी मेरे दिमाग में है वही बता देता हूँ मैं। सो एजुकेशन का वेट कितना है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड लाइफ से पूछो या एनिमल से पूछो, तो वाइल्ड लाइफ। और उसके साथ आपको मैरिज और सक्सेशन भी याद रखना है। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? प्रेसिडेंट रूल से। इज प्रेसिडेंट रूल टर्म हैज़ बिन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो। देन क्या लिखा गया है 356 में? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज़ बिन ब्रोकन डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ये लिखा गया। द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। येस, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन इंडियन parliamentary system is subject to judicial review. President's proclamation to revoke the president's rule does not require parliamentary approval. Yes, president's proclamation to revoke लिखा है ना, तो रिवोक में हमको कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कभी भी प्रेसिडेंट एक थ्रू एन नोटिफिकेशन कैन रिवोक द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल कब लगा था पहली बार? भाई पहली बार तो पंजाब में लगा था, अच्छी तरह याद है मुझे, और शायद से 1951, ये पता नहीं पर शायद से 1951 में लगा था। ओनली 2। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में पूछा गया है, सारे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं? नहीं भाई, कुछ 4/5 टर्म दिए गई है ना हमारे को लक्ष्मीकांत में, कि 4/5 मेंबर्स विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द रूरल एंड अर्बन एरियाज इक्वल होगा? नो। जितने एरिया का प्रोपोर्शन होगा ऑफ रूरल एंड अर्बन, उतने ही में सीट डिवीजन होगा। इसका मतलब 1:1 ये गलत है। इफ़ 2/3 इज़ द रूरल एरिया तो 2:1 में होगा, 2 मेंबर्स फ्रॉम द पंचायत, 1 फ्रॉम द म्यूनसिपालिटी। अंडरस्टूड? तो ये गलत है, इक्वल प्रोपोर्शन नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है। ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड? नो, 4/5 members will be elected and 1/5 will be nominated, I think. So this is D. Who will head the PM act as a chairman of which of the following committees? नीति आयोग का हेड चेयरमैन PM रहता है। NDC yes, NIC yes, इंटरस्टेट काउंसिल अंडर 263 कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। किसकी अध्यक्षता में? PM की अध्यक्षता में। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल यस। NDMA का हेड कौन होता है भाई? PM होता है। तो सब आपको एक साथ मैंने बता दिया है। डेलीगेटिव पावर्स और डेलीगेशन किस पावर्स में होता है? हमेशा एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव में हो गया तो 7 स्केड्यूल किस काम का है भाई, है ना? तो एग्जीक्यूटिव पावर डेलीगेट करी जा सकती है, या तो गवर्नर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। दीज आर जनरल केसेस, बट एक स्पेशल केस है जहाँ पार्लियामेंट भी कर सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट्स। अंडरस्टूड? विद अ लेजिस्लेशन। सो गवर्नर कर सकता है, पहले प्रायर कंसेंट ले लो, किसको? जिसको आप पावर्स दे रहे हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट है,
उससे कंसल्ट करके उसकी अप्रूवल ले लेगा, उसकी कंसेंट ले लेगा, भाई आई वॉन्ट टू डेलीगेट दिस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट टू यू, do you have the capacity to accommodate this power? Yes. If yes, the governor will delegate the power to the central government. President with the prior consent of the states or the state government. बीच में एक एरर आ गया था, पता नहीं सब क्लोज हो गया था, तो वापस देखते हैं हम। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। एंड प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो take consent of the state government that this executive power of the center I will be giving it to you. Do you have the capacity to implement that power? If yes, so yes, president can give this power to the state government. But suppose parliament is in question and the parliament is giving or want to give some executive power or delegate some executive power to the state government. So without the consent of the states, with the legislation, it can do so. So this is the power of the parliament. With the consent of the state government, the parliament can delegate, कंसेंट के बिना नहीं भाई, बिना कंसेंट के भी फोड़ देता है। और दूसरी बात, बोथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव नहीं, लेजिस्लेटिव नहीं, ओनली एग्जीक्यूटिव। द गवर्नर ऑफ द स्टेट में विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। यस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, सो ओनली 2। सो ये थी आज की पूरी पॉलिटी MCQ। होप सो आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं अगली हम सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।